Okay, good morning. So, dear students, yesterday we have discussed regarding the chapter 1, geography. That was the Indian size and location. So, in this chapter, we have discussed about the latitude and longitude. And longitude. Latitude and longitude extension of India is visible or not yet? We are studying later lecture. So latitude and longitude extension of any nation, not India, any nation, how to find out. You know there are the 180 latitude, 90 located from 0 degree to northern pole. There are the 90 latitude. So what are the latitude? Those circles which are running from the east to west, east and west. So these are the circles like this, which are running from the east to west, or these are known as the latitudes. Total latitude are 0 to 90 northern side, 0 to 90 southern side. There are the 180 latitudes. As if there are 360 longitude, which are running from the north to south. इतना सा ध्यान रखना है. Longitude are running from the top to bottom, like a vertical lines. These are known as the longitude. Visible longitude से 180 we can see, that is the eastern side or west side. These are known as the western side, where they receive the light. So 180 back side and 180 eastern side. The total number of longitude, not a latitude, are 360. Okay. तो उसमें आप चैप्टर स्टडी करोगे when you are chapter 5, that is the natural vegetation. So you know in natural vegetation there are the different classification of vegetation, like tropical vegetation, temperate vegetation, tundra vegetation found in the free zone. So what are these zones? अब ज़्यादा zone का concept क्लियर होगा तो you don't know about it कि which type of vegetation found in which area. So to start this topic, first we should be know about the major heat zones of the earth. So your earth is divided into 3 major heat zones. Now out of these 8 zones are divided. So you know heat zones are divided on the basis of latitude. Heat zones are divided on the basis of latitudes. You know 0 degree line. 0 degree line known as the equator, which divide. What is the main characteristics of this line? That latitude divide all earth into 2 equal parts. All earth into 2 equal parts. This line is known as this latitude is known as the 23 and half in northern side, that is Tropic of Cancer. As is 23 and half in southern side, that is known as the Tropic of Capricorn. Why 3 latitudes is known as the major latitude? Why these 3 latitudes known as the major latitude? Please. Till later on you can ask the doubt. Okay. So these 3 latitudes are known as the major latitude because this latitude receive the direct rays of sun. Which are latitudes are located between the 23 to 23 and half in northern side. All receive the direct rays of sun. But why this is the 3? Because this latitude divide all earth into 2 equal parts. This is the last latitude. That's why important. This is the last latitude which receive the direct rays of sun in northern hemisphere. Or this one is the last latitude which receive the direct rays of sun in southern hemisphere. Okay. That's why this latitude known as the major latitude. So those areas located between the 23 and half southern to northern side, that is known as the tropical zone. So first tropical zone. And tropical zone is also known by the torrid zone. TORRID, torrid zone. So this area between the 0 to 23 both sides, that is known as the tropical zone. So when जैसे क्वेश्चन आता है tropical evergreen forest, it means such forests are located between the major latitude, that is known as the tropical evergreen forest. Okay. 23 and up to 45 both sides is known as the temperate zone. It is known as the temperate zone.
It is located in northern side, so north temperate zone and southern temperate zone. This area receives the slanting rays of sun. That's why temperature during the summer 10, 20 degree. It depends on the different factors also. Temperature also depend on different factors. It not depend only latitudes. We have discussed earlier in chapter 4 climate. There are the many factors which play the important role for the temperature. Like it may be depend कि any one area may be surrounded by the water. Any one area may be located on the height. Any one area may be surrounded by the vegetation. There are different factors. So this is known as the cold temperate zone, southern temperate zone, and this cold area known as the frigid zone, both sides. So these are the three major heat zones. In class 6 में study करा रहा हूँ मैं. These are the given in your class 6 book, geography book. These are the three major heat zones of the Earth. First one is the tropical and torrid zone. It is not given in your book. It is for your concept only. Okay. Temperate zone and frigid zone. These are the three major heat zones of the Earth. Next topic, latitude and longitude. So total number of latitudes here there are the 180 and longitude are the 360. So this is the track like this. Vertical lines known as the longitude, like a 10 degree, 20, 30, 40, 50, just an example. Or another one latitude 10, 20, 30, 40, 50, 60. Value is northern. कुछ भी रख सकते हो. Just an example है. मैंने इसी northern side लिया. Okay. This is the east. हमेशा longitude value के सामने east और west ही आप use कर सकते हो. Many time what happened during the exam, student may be write the longitude value में northern and southern लिख दोगे. It totally wrong. 180 कभी 181 कभी north और south भी हो सकता है. क्योंकि लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट ही यूज होता है. क्यों? दिस आर द वर्टिकल लाइन. तो वो या तो फ्रंट डायरेक्शन शो करेंगे या वेस्ट डायरेक्शन बिहाइंड डायरेक्शन. एंड फॉर लैटिट्यूड यू मे बी यूज द नॉर्दर्न एंड सदर्न. ओके. तो एनी कंट्री मे बी लोकेटेड लाइक दिस. तो फाइंड आउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ दिस कंट्री. व्हाट विल बी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ दिस कंट्री? Yes? Anyone? 20 degree north to east. 20 degree north to 60 degree north. 20 degree north to 60 degree north. Okay, we can write the note at the last one. It depends on you. Okay. Or what is the? 10 degree east to. It is the latitude, na? Okay. L for latitude. 15 degree east to. 15 degree to. Sir, 30 degree. 15 degree to. Sir, 10 degree. 10 degree. अरे 15 to 10 कैसे होगा? It will be increase or like this. नहीं सर, 15 कैंसर. 10 degree to 50 degree. 10 degree to 50 degree. 10 degree to 15. Longitude. It is longitude. Yes, Yes. sir. Okay. East longitude. Okay. Just check. Which one is the first longitude? जो first longitude कैसे find out करोगे? It is simple. जिसकी value सबसे कम है, it is the first latitude. Okay. जैसे 10 डिग्री तो फर्स्ट है, वेस्टर्न साइड जो टच कर रहा है इसको. ओके. एक्सटेंशन हो गया. तो longitude extension from first longitude which touch the any nation's border and last longitude. Last one is the 50. तो इसकी वैल्यू है 10 to 50 बोला कि 50 बोले आप? 50 sir. 50. Okay. 10 to 50 east. You may be right. Longitude is correct answer. Okay. And latitude size 20 degree. Correct. Which one is the latitude where the cell? And last one is the okay 60. 60 na? Yes. First latitude 20 or 60. It is correct. So out through this we find out the location of any nation. Extension कितना longitude और latitude. तो एजिट इंडिया का जो एक्सटेंशन है, इंडिया लोकेटेड बिटवीन फ्रॉम that longitude to which one is the last longitude and first longitude and sorry latitude and last latitude. तो इंडिया की लोकेशन यू नो.
फर्स्ट लैटिट्यूड जो टच कर रहा है इंडिया को, दैट इज द 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, लास्ट लैटिट्यूड जम्मू कश्मीर जो टच कर रहा है दैट इज द 37 डिग्री 6 मिनट। तो इट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। फर्स्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, जैसे लाइक वो अर्लियर कंट्री वी हैव सीन, वैसे ये बोल्ट लोकेटेड है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लास्ट वन इज द 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, तो दैट इज द लास्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। लैटिट्यूड एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। If it is located maybe in southern side, तो we'll count from here. साउथ में तो यहाँ से काउंट करते हैं, साउथ में लैटिट्यूड क्या हुआ इंक्रीज होंगे टॉप टू बॉटम। ओके, दैट इज द लोकेशन। अब जब मैप ड्रॉ कर दिया तो वी विल स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होते हैं किसी भी नेशन की? स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द लाइन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द लॉन्गिट्यूड व्हिच डिवाइड ऑल नेशन इनटू टू इक्वल पार्ट। Standard meridian is the longitude value which divide all nation into two equal part. So how do we calculate mid longitude? तो simple सा है, first and last longitude को हम add करके only degree को, not a minute, we will add the first and last longitude and divide by 2. तो 68 and 97 total 165 divide by 2, 82 and आप 82.5, और व्हाट इज द डायरेक्शन गिवन? ईस्ट। तो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन साइड क्या हो गई? 82 एंड हाफ। थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ एनी नेशन। किसी भी नेशन का स्टैंडर्ड मेरिडियन फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूड लास्ट लॉन्गिट्यूड, वी कैन ऐड द बोथ लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइड बाय 2, तो थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो we can find the standard mean. अब इतना निकल गया तो मैं ये भी बता देता हूँ how to we calculate that time. तो dear you know there are the 360 longitude and to complete the one rotation 360 longitude passes in front of the sun. यानी वापस वही longitude आ जाएगा जो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, तभी तो one rotation होगा। You know ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। कोई एग्जांपल कीजिए। तो 360 longitude passes within the 24 hours. So what will be time taken by the two passes sunlight from the one longitude to another? So we can say other words कि one longitude को कितना टाइम लगेगा। तो to calculate this 360 longitude taking the 24 hours, तो सिंपल है, या तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द मिनट, और अगर आप आवर्स का फाइंड आउट करना चाहोगे तो ये 1 आवर्स के अंदर आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 360 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 15, तो 1 आवर में कितने हो गए? 15 लॉन्गिट्यूड, यू मे बी डिवाइडेड। ओके, तो 1 आवर के अंदर 15 लॉन्गिट्यूड पासेज हो गए। तो यू नो फाइंड आउट द वन लॉन्गिट्यूड, तो 1 आवर को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मिनट में। 60 मिनट कर दो, डिवाइड बाय 15, इट विल बी 4 मिनट। यानी वन लॉन्गिट्यूड को अनदर लॉन्गिट्यूड पे सन की लाइट जाने को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। अनदर वैसे इसको सोल्व कर सकते हो, और यू मे बी कन्वर्ट 24 आवर्स इनटू द मिनट, तो ये मिनट आ जाएंगे, और व्हेन यू डिवाइड 360 इट विल बी 4। ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ओके, तो थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे सन की लाइट को जाने में लग रहा है 4 मिनट। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है इन योर बुक कि टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट टू वेस्ट। लिसन बेटा, आप मेरी तरफ देखो, बुक में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मे बी पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग लेक्चर है तो हो सकता है कि थोड़ा तेज बोल रहा हूं, या मे बी आई एम यूजिंग द मेकिंग इंग्लिश वर्ड और व्हाटएवर, ये हो सकता है। तो आप डाउट लास्ट में, तो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड टू लास्ट लॉन्गिट्यूड सन को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? तो सिंपल सा है कि लास्ट लॉन्गिट्यूड से हम जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड है उसको माइनस कर दें, तो उससे फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने लोकेटेड है।
तो अप्रोक्सीमेटली 29 आपका आंसर आएगा 97 माइनस 68 29 लॉन्गिट्यूड इंडिया से पासेस हो रहे हैं 29 लॉन्गिट्यूड ओके तो 1 लॉन्गिट्यूड इज टेकिंग द 4 मिनट तो अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में हम देखें तो 30 कर लेते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 मिनट्स इट मींस डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट टू वेस्ट 1 ये आंसर आपने मैंने लॉजिक बता दिया विद एक्सप्लेनेशन व्हाई टू आस्क टू ओके अब अनदर वन आता है कि यू नो सनराइज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट सनराइज होता है तो सन की रेज सबसे फर्स्ट आएगी इन अरुणाचल प्रदेश लेटर ऑन आसाम लेटर ऑन डिफरेंट स्टेट लाइक और एट द लास्ट इन गुजरात ओके तो एक एनी वन लॉन्गिट्यूड लोकेटेड है ये 0 डिग्री है तो दैट इज द 97 डिग्री आफ्टर 97 आ रहा है 68 आफ्टर 68 कम वैल्यू आएगी लेस वैल्यू और एट द लास्ट 0 डिग्री आएगी ओके तो पहले टाइम 97 पे जो टाइम है इट विल बी लेटर ऑन दैट 68 जो 68 पे टाइम है इट विल बी 58 पे लेटर ऑन आएगा 58 पे वो 48 पे लेटर ऑन आएगा और 0 पे सबसे लास्ट आएगा तो अगर यहां 10 AM है इन इंडिया 10 AM तो व्हाट विल बी टाइम है टाइम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन से सेम है पर जस्ट एग्जांपल अगर वहां 10 AM है तो व्हाट विल बी टाइम ऑन 68 अरे भी आपने बताया कि 8 AM सिंपल यानी ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं 8 AM क्यों है इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है ओके तो इससे ये मीनिंग निकलता है कंसेप्ट निकलता है कि इट विल बी लेटर ऑन 0 डिग्री तो वी कैन से इफ यू मूव फ्रॉम द 0 डिग्री टू ईस्टर्न साइड क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है ईस्ट हो गया if you are moving from 0 degree to east side तो we will be add the time or subtract the time क्या करेंगे टाइम ऐड करेंगे सिंपल है अगर 0 डिग्री से वेस्ट जाएंगे तो टाइम को सबट्रैक्ट क्योंकि क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क्स लेकिन लाइफ से रिलेटेड है कि कैसे टाइम फाइंड आउट करें तो इसलिए मैं पूरा कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि कैसे टाइम को फाइंड आउट किया जाता है तो 0 डिग्री से वेस्ट साइड मूव करेंगे तो विल बी सबट्रैक्ट टाइम और इधर ऐड कर देंगे टाइम ओके तो किसी भी कंट्री का टाइम निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सपोज 7 AM on 0 डिग्री तो व्हाट विल बी टाइम ऑन द इन इंडिया इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 तो अगर 0 डिग्री पे 7 AM है तो फाइंड आउट व्हाट विल बी टाइम इन इंडिया वो डिफरेंस होगा टाइम क्या होगा मैंने टाइम पूछा है डिफरेंस नहीं पूछा फाइंड आउट करके बताओ बेटा पहले डिफरेंस फाइंड आउट करो फिर आपको क्या स्टेप पे चलना होगा वो स्टेप बताइए 12.5 योर आंसर 12:30 PM ओके ये वो 12:30 जस्ट ओके तो यू नो डिफरेंस बिटवीन द 0 टू इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 आ रहा है 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 वन लॉन्गिट्यूड इज टेकिंग द 4 मिनट तो आप लॉन्गिट्यूड विल टेक द 2 मिनट तो वी कैन राइट सेपरेट 2 मिनट सेपरेट लिख लो आप और मल्टीप्लाई करो 82 बाय 4 8 और 328 प्लस 2 टोटल मिनट कितने हो गए 330 मिनट ओके ना 330 मिनट विल डिवाइड बाय द आवर्स 60 तो इट विल बी 5 आवर्स 30 मिनट तो जो डिफरेंस आया वो कितना है 5 आवर्स 30 मिनट ये डिफरेंस है तो अगर हमने इंडिया का टाइम फाइंड आउट करना है तो विल ऐड द टाइम तो यहाँ पे क्या है 7 AM तो 7 AM में आप 5 आवर्स 30 मिनट ऐड करोगे तो इट विल बी 12:30 PM तो ऐसे किसी भी कंट्री का टाइम फाइंड आउट करते हैं ओके अब whatever topic we have taught here it is difficult to discuss the doubt तो कभी भी ये स्टफ किया करो कि when you study the any topic here तो if you feel any doubt at your home you may be ask जैसे आओ इसको तो उससे पूछ लिया करो सबसे पहले नहीं तो सर आपने वो नेगेटिव what 68 डिग्री 8 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट हां वो आपने 7 मिनट
7 मिनट कैसे दिए? जैसे ये हफ्ते का, तो यू नो इट इज द डिग्री वैल्यू, किसी भी डिग्री की वैल्यू होती है, ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो बिटवीन द डिग्री जो सब यूनिट है दैट इज द मिनट, और मिनट से भी छोटा क्या है सेकंड, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द मिनट, क्योंकि अर्थ क्या 360 में डिवाइड 360 डिग्री का एंगल पे, क्योंकि मैथ्स में आपने स्टडी किया दैट इज द 90 डिग्री, 90 180 हो गया और 180 360 डिवाइड हो गया, तो सपोज ये 1 डिग्री हुआ और ये 2 डिग्री हुआ, तो बिटवीन द 1 और 2 देयर विल बी ए गैप, तो बिटवीन दैट गैप जो लाइन से दैट इज नोन एज द मिनट, और बिटवीन द मिनट जो गैप है दैट इज नोन एज द सेकंड, ये इसी से चलता है। तो हम मिनट को इसलिए ऐड नहीं करते, जब डिवाइड करते हैं तो हम डिग्री को लेते हैं मेजर व्हेन वी फाइंड आउट द टाइम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। सपोज दिया 0 to 180 लॉन्गिट्यूड इन द ईस्टर्न साइड, ये 0 है और 180 बैक साइड, हम इसको 180 लिख देते हैं, ओके, और उधर से अर्थ स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल बी रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ सन, तो यहां क्या होगा डे, ओके। फर्स्ट आपका जो 0 डिग्री है लेट 180 इज द बैक साइड, तो बैक साइड लिख रहा हूं मैं, तो दैट डायरेक्ट रेज ऑफ सन रिसीव बाय द रेड हेमिस्फीयर दैट इज नोन एज द डे, और बैक साइड नाइट, तो 180 degree is the line which divide all earth into two equal parts through the day and night, that is known as the circle of illumination। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसा नहीं होता वैसे देखा जाए तो, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, इट इज लाइक इट इज लाइक व्हाई, बिकॉज़ अर्थ जो है ना वो 23 है, उसके एंगल पे वो झुकी हुई है, दैट्स व्हाई दिस हैपेंस, ओके। तो दैट इज द डे और नाइट, तो बेटा ये डे और इधर नाइट होगा, तो इस दिस लाइन इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे और नाइट को डिवाइड करता है। तो जैसे आपने 0 डिग्री को टाइम लाइन डिवाइड किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पासेज है, लंदन से पासेज है, वहां पे एक लैब बनी हुई है दैट इज नोन एज द ग्रीनविच लैबोरेटरी, दैट्स व्हाई दिस लाइन आल्सो नोन एज द ग्रीनविच लाइन, ओके। और 0 डिग्री इट इज पासेस फ्रॉम लंदन लेबोरेटरी एंड दैट इज नोन एज द 0 डिग्री। तो व्हाट इज द रोल ऑफ 0 डिग्री? 0 डिग्री इज द टाइम लाइन, टाइम डिवाइड होता है, 0 से इधर जाओगे ऐड हो जाएगा, 0 से इधर जाओगे माइनस होगा, तो ऐसे बैक साइड में 180 आएगी, क्योंकि 0 से अगर आप टाइम लाइन स्टार्ट कर रहे हो तो 0 to 180, क्योंकि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, तो आप लॉन्गिट्यूड आर रिसीविंग द डे और आप लॉन्गिट्यूड नाइट कर रहे हैं, तो 0 to 180 कितना हो, आप हो गया, तो 180 के बाद क्या होगा, नाइट होगी, इट मींस आफ्टर 180 नाइट होगी, तो इट इज द ईस्ट डायरेक्शन, तो एनीवन मे बी मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो ही विल ऐड द डेट और नॉट और सबट्रैक्ट द डेट। सपोज यहां पे आ जाए 19 129, तो यहां नाइट हो रही है, तो यहां क्या डेट होगी बेटा 18, गुड। So we can say in other words, if any one person may be move across the 180 longitude, so he will add the time date in his wall, okay? तो ये अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हो तो 1 डे ऐड होगा, और इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट तो 1 डे सब्ट्रैक्ट। तो 0 डिग्री लाइन इज नोन एज द टाइम लाइन and 180 degree longitude is known as the date line, DAT, date line बोलते हैं, it is known as the date line, it is not in your syllabus but फिर भी concept के लिए मैं जब इतना पढ़ा रहा हूँ तो उस चैप्टर के लिए करते हैं। अब लास्ट वन आता है जो आप खुद स्टडी कर सकते हो, which are the country which are located are neighboring country like this, what is the importance of Indian Ocean, 2 क्वेश्चन हो बच्चे या डेट लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डे लाइन भी बोल सकते हो, डेट लाइन भी बोलते हैं, और वैसे ज्योग्राफी में अगर क्लास 6 में स्टडी कराते हैं दैट इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो भी बोलते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो होता है दोस डिवाइड द डे एंड नाइट, तो एक कंट्री ऐसी भी नॉर्वे, जो ऐसा हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वहां से पास हो रहा है। तो डेट लाइन क्या होती है बेटा, अगर कोई डेट लाइन, ऑल आर लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, मैं पहले बता दूं ये सब जितनी भी लाइंस है ना ये जस्ट इमेजिनेशन है, दिस आर नॉट लाइक ए पेंटिंग, क्योंकि ऐसी लाइन खींच दी जाती है, इट इज डिफिकल्ट,
जस्ट आप इमेजिनरी लाइन। तो यू नो अगर सपोज 180 line is passes from any line passes like this or any one island or country may be located here। तो इसमें क्या होगा, इधर जाएंगे तो उनकी वॉच क्या टाइम शो करेगी, डिफरेंट डेट, और इधर डेट डिफरेंट करेगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई इस टाइप से डेट लाइन क्या करती है, टर्न ले लेती है लाइक दिस। तो नॉर्वे एक ऐसा नेशन है जहाँ पे मिडनाइट में भी आप सन देख सकते हो, क्योंकि वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे लोकेटेड है। तो डेट लाइन इज नोन एज द डेट लाइन। ओके, अब इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यू नो, हम जो डिफिकल्ट चैप्टर है लाइक हिस्ट्री वो भी स्टार्ट करेंगे, पर बता दें कि एक बार स्ट्रेंथ आ जाए, लेट ऑन विल डिसाइड, क्योंकि अपने सालों में मैंने आगे से स्टार्ट किया, लेट ऑन 5 to 6 स्टूडेंट लिविंग न्यू, फिर वापस उसी लेक्चर को रिपीट करो। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग दिस चैप्टर फॉर अ फ्यू डेज, आफ्टर 26 विल कंटिन्यू विद द डिफिकल्ट चैप्टर। ओके, तो लाइक दिस। अब इंडिया की साइज क्या है, तो यू नो साइज मींस एरिया, तो इंडिया की साइज है 3.28 million square kilometer। No such explanation equal to size is size, total number of area covered by the India। okay, and ये इसकी साइज होगी, तो you know we are located at the world level, means the world का जो एरिया है वो हमारे पास कितना है, only 2.4%। वर्ल्ड का जो एरिया है इंडिया में that is only 2.4%, और we are second largest nation, we are the second largest nation after China, और एरिया वाइज वी आर हैविंग द 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरियाज। अनदर वन, व्हाट इज द लैटिट्यूड साइज ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड साइज, 68 डिग्री 7 मिनट, लास्ट वन इज द 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेस्ट टू फ्रॉम द west to east like this and like this. So one is the 2933, another one is the 3214 kilometer। so find out which one is the east to west or which one is the north to south। 2933। okay, from Gujarat to Arunachal Pradesh distance, and from Jammu Kashmir to Kanyakumari that is the 3214 kilometer। or you know total number of latitude and longitude approximately are same। हमारे इंडिया में जो latitude है, total number of latitude approximately 29 है और longitude भी 29 है, both are same। तो why is the variation between the distance, size is the latitude and longitude is different from place to place, like equator पे सबसे ज्यादा distance होगा latitude पे, और it will be closer on the both side। okay, and what is the land border, so land border you know that area from Gujarat to till that is the 15,200 kilometer, it is the land border of our country, land border only, which are not sharing the coastal area। and coastal border of India including the Andaman Nicobar and Lakshadweep, that is the 7,516.6 kilometer coastal border। तो coastal border यहाँ से स्टार्ट होगा like this, ये जो लेंथ है पूरी including the both island 7,516.6 kilometer, land border 15,200 kilometer land border। which are the nations which are neighboring country, first Nepal, China, Pakistan, Afghanistan also, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, these are the nations। okay, श्रीलंका इसलिए नहीं आता because it is separated by the Pakistan, border touch नहीं हो रहा हमारे, there is the water strip between the both nations, water की स्टेट है वहाँ पे, that is known as the Pakistan।
यहाँ पे पाकिस्तान है PLP। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया था विच स्टेट सेपरेटेड द इंडिया एंड द श्रीलंका पाकिस्तान। एक क्वेश्चन ये आया था इन आरएस कि विच आइलैंड इट क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, यू नो विच आइलैंड? न्यू मरे आइलैंड। एर इज द बांग्लादेश और यहाँ इंडिया के बीच में न्यू मरे आइलैंड लोकेटेड है। तो दोनों कंट्री उस पे अपना को बोलते हैं कि इट इज माय नेशन पार्ट और अनदर वन, दोनों उस पे क्लेम करते हैं। तो न्यू मरे आइलैंड गिवन इन योर बुक होगा वो, तो डेट इज द उसमें। तो पॉसिबल हाईएस्ट लेवल पे इस टाइप के जो क्लास 7th 8 उनसे रिलेटेड डीप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन की जो होते हैं ना वो पूछ ली जाती है। तो दिस इज द रिलेटेड टू द इंडिया नेशन साइज लोकेशन व्हाटएवर हमने सब डिस्कस कर लिया। अब ओनली वन इज दैट इज द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन मींस इंडियन ओशन। तो दोस्त इफ यू वांट टू विजिट द वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन नेशंस और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल on the basis of India and on the Indian Ocean. Okay, so that is the importance of Indian Ocean. So if you have any doubt related to this chapter, you may be asked. मैं बहुत पार्ट्स लाऊं क्योंकि मुझे दोनों चैप्टर का सोच रहा था, मैं तो देखते हैं टाइम क्या हुआ है। Okay, so if you have any doubt related to this chapter, you may be asked. Let us start the story of past. फिर पीरियड इस टाइप से कि सपोज ये ग्रुप है और सेकंड टाइम है, तो इसमें का वाटर वाटर को वो न्यू करना है, और जो नेक्स्ट ग्रुप है नेक्स्ट पीरियड वो फर्स्ट ग्रुप है फॉर 2 days, तो सेम लेक्चर विल बी रिपीटेड। तो इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ पागल टाइम होगा तो ओके। इसी चैप्टर को मुझे लगा आई वो इट नॉट पॉसिबल स्टोरी पागल जल्दी में कर लेंगे बहुत है। तो if you edit out or was it that थोड़ा सा recording is going on, that's why most of means by lecture in English either than we to press study कर लेते हैं वो बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं। तो सब में भी कुछ बच्चों को ये लाभ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज के पहले जो है can't understand it, मेरे को possibility है। तो आपको कोई भी डाउट है यू मे बी आस्क क्लियर करेंगे द साइड लोकेशन। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूं। मोस्ट व्हाट इज द इंडिया साइज, सेकंड आता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड साइज, वो डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए लर्न करना, क्योंकि वो वैल्यू डिग्री में लिखेगा तो मिनट नहीं आता, मिनट में लिखेगा तो क्या लैटिट्यूड क्या ईस्ट क्या नॉर्थ है वो उसमें लिखना पड़ता है। ओके, समटाइम्स स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं सिंपली इट इज 7 मिनट टू 37 डिग्री मिक्स अप कर देते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू करनी थी। अनदर वन डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कोस्टल एरिया, यस सर। और एक क्वेश्चन आता है व्हाई इज द 2 आवर डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट टू वेस्ट टू आता है व्हाई द वॉचेस आर शोइंग द सेम टाइम, वो इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी नहीं है। पता चला आपको इन वेस्ट बंगाल को एग्जाम कराना 10 है तो इधर गुजरात में तो उस समय 8 AM होने होंगे तो पेपर आउट हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस देयर आर मेनी प्रॉब्लम दैट्स व्हाई वॉचेस आर शोइंग द सेम टाइम। और वॉचेस भी किस लॉन्गिट्यूड को शो करते हुए टाइम को ले जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द मिड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आई विल